Hello students, how are you all? I hope all of you are fine. So as you know, this is the session for class 2nd subject English grammar. Today also I am taking the grammar topic, but this is your summary lecture. And in the summary lecture, I am taking lesson 9 verbs, that means action words, and lesson 10 use of is rm. As I already told you that is rm are called linking word or helping verb. So in this lecture I will tell you about verbs and linking verbs. So let's continue. Let's recall verbs. In lesson 9 we discussed about the action words, and in lesson 10 we discussed about the linking words. जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेसन 9 में हमने एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, और लेसन 10 में हमने लिंकिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा था. एंड लिंकिंग वर्ड्स आर कॉल्ड verbs also. And in lesson 10 we only discuss about use of is rm. Now in this lecture, first of all I will tell you about verbs. That what are verbs? Verbs, they are action words from which we came to know the subject is doing something. We came to know that the subject is doing something. For example, run, eat, sleep, cry, laugh, etc. So these are the action words or doing words, as we have already discussed in lesson 9. जैसा कि हमने lesson 9 में डिस्कस किया था कि आप जो कार्य कर सकते हैं हम उनको verbs कहते हैं, और verbs को हिंदी में क्रिया भी कहा जाता है. So I think now you are very well aware about the verbs. And even जो आप सेंटेंस वाक्य बनाते हैं वो भी बिना verbs के एक्शन वर्ड्स के कंप्लीट नहीं हो सकते. Now after verbs I am telling you linking verbs. Verbs की कैटेगरी में linking verbs भी आते हैं, but there is a difference between linking verbs and verbs. So the difference is linking verbs are the verbs which do not express any action. Linking words वो verbs होते हैं जो कोई action show नहीं करते. They only connect subject with object or predicate. वो subject को object से जोड़ते हैं या predicate से जोड़ते हैं. For example, is, are and am. Is, are and am. Why I am telling only these three? Because we have discussed only 3 linking verbs in lesson 10. So is, are, am comes from to be. That means कि जो is, are, am है वो be की ही फॉर्म है. जब आपसे fill in the blanks फॉर्म में पूछा जाए कि आप इसमें to be भरिए, तो to be means it can be is, are or am. And from is, are, am we came to know that we have to fill only present tense. That means we are working with present tense, यानी कि हम present tense में ही काम कर रहे हैं. I am a boy. मैं एक लड़का हूँ. जहाँ am आ जाता है तो पीछे क्या आएगा? हूँ, और I के साथ हमेशा am आता है. She is a girl. वह एक लड़की है. Is pretends to है. वह एक लड़की है. He is a boy. वह एक लड़का है.
सीता इज अ टीचर, सीता एक अध्यापिका है। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। देखिए वी के साथ आर आया बिकॉज वी प्लूरल को डिनोट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि एम हमेशा आई के साथ ही आएगा, ही, शी, इट नेम के साथ इज आएगा। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। दे आर कजन्स, वो कजन्स हैं, यानी कि चचेरे ममेरे बहन भाई हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कजन्स। यू आर फ्रेंड्स, तुम दोस्त हो। इट इज़ अ ट्री, यह एक पेड़ है। I is singular and with I am will come. He, she, it क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या आया है? is. We, they ये क्या है? प्लूरल, और इनके साथ क्या आया है? are. You is also singular and but you के साथ भी are आता है, it's a rule। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने यू के साथ भी सिंगुलर होते हुए भी आर का ही यूज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू विल टेक केयर while doing the work. Now, I think आप लोगों को verb और linking verbs के बारे में अब समझ आ गया होगा। Now it's the activity time. You just leave your notebook and pen and I will tell you some verbs and you have to listen those verbs and accordingly you have to do the activity, and if your parents are with you they will notice you that are you doing or not. Stand. What do you mean by stand? Stand means खड़े होना। तो आपने ये एक्टिविटी की, अगेन इट इज़ अ वर्ब। देन वॉक, इफ यू वॉक then again it is a verb because you are doing something. Run, if you run, start running, it is again a verb. If you are able to do, जो भी आप पुश कर पाएंगे वो क्या होगा? verb. Jump, you are able to jump. Hop, छलांग लगाना, आप छलांग भी लगा सकते हैं। Dance, now dance if you know, अगर आपको डांस नहीं भी आता है तो बच्चे आप नहीं कर सकते, पर जिनको आता है दे कैन डू, सो इट इज ऑल्सो वर्ब, तो ये भी वर्ब ही होगा। क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना, दैट द गर्ल इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, द मंकी क्लाइंब ऑन द ट्री, सो लाइक दिस क्लाइंब इज ऑल्सो वर्ब। क्लैप, यू कैन क्लैप ऑल्सो, आप ताली भी बजा सकते हैं, सो क्लैप इज ऑल्सो अ वर्ब। swim, swim is also verb. अब आप कहेंगे I don't know swimming, so how it can be verb? but बच्चे swim वो एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो लेकिन आपको सीखनी पड़ेगी, तो it is verb. eat, eat is also verb. drink is also verb. if you are doing, it's a verb. अगर आप कर रहे हैं तो वो क्या है? वर्ब है। अब इनमें से कुछ एक्टिविटी हैं जो आप नहीं कर सकते, तो यू कैन लर्न दोज एक्टिविटीज़, लाइक यू कैन लर्न डांसिंग, यू कैन लर्न स्विमिंग। सो दीज ऑल वर्ड्स आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्ब। ये सब वर्ड किस कैटेगरी में आते हैं? वर्ब की कैटेगरी में। नाउ टू क्लियर द टॉपिक, we will do this particular question. You have to draw a box or underline action words. Below few words are given. आपको जो verbs हैं इनमें, action words हैं इनमें, box बनाना है उन पर या underline करना है. So the words are skip, are, eat, sleep, comb,
cup, walk is pen, park, ride, fly. I think you know about each and every word. skip मतलब रस्सी कूदना, आर जो है वो एक लिंकिंग वर्ड है, ईट खाना, स्लीप सोना, कॉम कंघी करना, कप प्याला, वॉक चलना, इज है, पेन पेन जो आप यूज़ करते हैं लिखने के लिए, पार्क पार्क को आप उद्यान भी कहते हैं, बाग भी कहते हैं, राइड किसी चीज़ पर सवार होना, फ्लाई उड़ना. सो दीज आर द वर्ड्स. नाउ लेट मी शो यू द सॉल्यूशन. उससे पहले आप करिए कि किस किस वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है, एंड देन आई एम शोइंग यू द सॉल्यूशन. नाउ हैव यू डन? इफ यू हैव डन, then check from the particular slide. skip is a verb. r आपको अच्छे से पता है linking verb है, action verb नहीं है. eat is also action verb, so we underline it. sleep is also action word, we will underline it. comb is also action word. अब आप सोचेंगे comb का मतलब तो कंघा होता है, बट बेटे कॉम का मतलब कंघी करना भी होता है, अपने बाल को संवारना भी होता है. कप इज नॉट एक्शन वर्ब. कप क्या है? नेमिंग वर्ड. वॉक इज एक्शन वर्ड. इज लिंकिंग वर्ड. पेन इज अगेन अ नेमिंग वर्ड. पार्क इज ऑल्सो नेमिंग वर्ड. राइड एक्शन वर्ड, and fly is also action word. Now I hope you understand the difference between linking word, naming word and action words. Now let's discuss an exercise. Fill in the blanks with is, am or are. आपको given Phillips जो हैं वो is, are, am की फॉर्म में फिल करने हैं. I dash मिठू, फिल करिए फटाफट. Second, we dash happy. Now third one, I dash not an idiot. Ships dash sailing in the sea. The school bell dash ringing. So I hope you understand all the sentences and you have to do accordingly. आपको सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान रखना है. नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस. अनिल डैश स्विमिंग इन द पूल. राम एंड श्याम डैश फ्रेंड्स. यू डैश अ स्टूडेंट. द टाइगर डैश फीलिंग हंग्री. दे डैश फ्रेंड्स. So these are the sentence which you have to fill. I hope you have done it. Now it's the time for checking. अब हम चेक करते हैं क्या आपने सही किया है. Let's check. Now the first sentence, I के साथ क्या आएगा? am. You can see I am Mithu, I am girl, I am Ram, I am Sham. वी के साथ क्या आएगा? आर. वी आर हैप्पी. आई एम नॉट एन इडियट. अगेन आई के साथ एम आएगा. शिप्स, हम यहाँ एक शिप की नहीं बात कर रहे. शिप्स आर सेलिंग इन द सी. अगर यहाँ शिप होता तो इज आता. द स्कूल बेल इज रिंगिंग. स्कूल की बेल बज रही है. नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस. अनिल इज स्विमिंग इन द पूल. यू वेरी वेल नो कि नेमिंग वर्ड के साथ भी इज आता है बिकॉज इट डिनोट सिंगुलर पर्सन. वो किसको डिनोट कर रहा है, किसको बता रहा है? एक सिंगुलर पर्सन के बारे में. राम एंड श्याम, देखिए यहाँ नेमिंग वर्ड्स हैं बट दे आर 2 इन नंबर. कितने हैं वो? 2. तो यहाँ क्या आएगा? आर. राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. यू आर स्टूडेंट. आपको पहले भी पता है कि यू के साथ आर आता है. यू आर स्टूडेंट. द टाइगर इज फीलिंग हंग्री. टाइगर सिंगुलर के लिए बात कर रहे हैं हम.
इज आएगा. दे आर फ्रेंड्स. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दे, यानी कि प्लूरल इन नंबर. सो दे के साथ क्या आएगा? आर. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज is, am and are. Now it's the time for homework time. For the summary lecture, you very well know I will provide you assignment, that is assignment number 1. It will be uploaded on the Adquark. ये Adquark वेबसाइट पे आपकी अपलोड कर दी जाएगी and you can get that assignment from there only. And you can also see the solution on it. वेरी नेक्स्ट डे आप सॉल्यूशन देख लेंगे. जिस दिन लेक्चर अपलोड होगा उसी दिन आपकी असाइनमेंट अपलोड होती है, यू वेरी वेल नो. एंड इन द नेक्स्ट डे द सॉल्यूशन विल बी अपलोडेड. और अगले दिन सॉल्यूशन अपलोडेड हो जाता है. यू कैन चेक योर सॉल्यूशन, यू कैन चेक द वर्क विच यू हैव डन. नाउ आई होप you understand the homework. Now it's the time for homework solution, and this is the homework solution for lesson 10, and it is a worksheet on verb in which you have to fill is, are or am. आपको इसमें क्या fill करना था? is, are or am. So fill in the blanks with is, are or am. You are beautiful. You very well know you के साथ क्या आएगा? are. Tim and Tina are married because Tim and Tina are 2 in numbers. तो क्या आएगा? are. It is rainy. You very well know it के साथ क्या आता है? is. I am Calvin. You very well know with I we have to use am. So we are using am over here. और हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं? am. You के साथ are यूज़ किया. When there are 2 persons are यूज़ किया. इट डिनोट्स सिंगुलर. इट जो है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है तो इज़ यूज़ किया. और आई के साथ हमने एम का यूज़ किया. ही इज़ हैप्पी. ही सिंगुलर को डिनोट करता है तो इज़ आएगा. आई के साथ अगेन एम. आई एम लेट. इट इज़ कोल्ड. इट के साथ अगेन इज़. शी इज़ जर्नलिस्ट. वह पत्रकार है. शी के साथ क्या आएगा? इज. वी आर इन द स्कूल. वी के साथ क्या आ रहा है? आर. वी किसको डिनोट करता है? प्लूरल को. शी इज टॉलर देन मी. अगेन विद शी वी विल यूज इज. सो आई थिंक यू वेरी वेल नो विद ही, शी, इट, इज. विद वी, दे एंड यू, आर. एंड विद आई वी विल यूज एम. Do you do your homework properly? आपको अपना होमवर्क वेरी प्रॉपर वे से करना है. Recall the lessons and prepare for the test that will be on 13th July Monday. बच्चे आपका 9th and 10th चैप्टर का मैं इकट्ठा टेस्ट लूँगी जो कि आपका कमिंग मंडे को होगा. एंड आफ्टर मंडे वी विल प्रोसीड फॉर द रिवीजन ऑफ टर्म 1. आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको पहले लेसन 9 और 10 को रिकॉल करना है. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर रिवीजन पार्ट ऑफ टर्म 1. सो जिन बच्चों ने नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर नहीं की थी टर्म 1 की, दे विल अटेंड द लेक्चर कॉन्टिन्यूसली सो दैट जो उनका पीछे का रह गया है दे आर एबल टू डू द वर्क ऑफ टर्म 1. वो टर्म 1 का वर्क कर पाएँ. बिकॉज आफ्टर रिवीजन योर एग्ज़ाम विल बी, योर एवल्यूशन विल बी कंडक्टेड and you have to prepare for that. So be regular, do your homework properly, maintain your notebooks so that you are able to revise the work in a proper way. I hope you understand. आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मंडे को आपका चैप्टर 9 एंड लेसन 10 का टेस्ट है और आफ्टर मंडे हम टर्म 1 की रिवीजन स्टार्ट कर देंगे so that आप
अच्छे से पेपर में अपने आप को शो कर सकें, दैट यू कैन अटेम्प्ट द पेपर इन अ वेरी वेल वे. सो रेगुलरली आप जो हैं लेक्चर अटेंड करेंगे, रिवीजन शेड्यूल को रेगुलर वे से लेंगे. हैव अ गुड डे. थैंक यू.